بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کئی مہینوں سے اس سوشل میڈیا فائر وال کے چکر میں تمام تر وہ ترجیحات ختم کر چکا ہے جس کی بنیاد پر ملک کو آگے بڑھنا تھا۔ اربوں ڈالر جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف جو یہ ٹولز ہیں سوشل میڈیا ان کے ذریعے پاکستان آ رہے تھے، لاکھوں نوجوان اپنی محنت مزدوری اس کے ذریعے کر رہے تھے، ان سب کا ان حکمرانوں نے بٹھا بڑھا دیا، ان کے چولہے ٹھپ ہو کر گئے اور ان کی شمعیں گل ہو چکی ہیں۔ لیکن حکمران ہیں کہ انہوں نے ایک ہی دعویٰ کر رکھا ہے، یہ ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا ٹھیک ہے، ہر چیز ہماری چل رہی ہے، یہ سب لوگ جو ہے غلط بیانی کر رہے ہیں، جبکہ ان کو اندر سے پتہ ہے کہ جو ریمیڈنس پاکستان آ رہے تھے اس میں بھی اربوں ڈالر کی کمی آ گئی ہے۔ لیکن نہ جانے کون سی ایسی بات ہے، یہ کون سا ایسا خوف ہے جو ان کو رات کو سونے نہیں دیتا، دن کو چین نہیں لینے دیتا، لیکن وہ فائر وال کو کسی طریقے سے بھی آزاد نہیں کرنا چاہتے، اور انہوں نے ہواؤں پہ کمانڈ ڈالنے کے لیے پاکستان کی ایک نائب وزیر ہیں شیزا بٹ، جو کہ خواجہ آصف جو کہ سیالکوٹ میں پی ٹی آئی کی محترمہ اماں جی سے ہار گئے اور زبردستی وہ ایم این اے بنے، ان کی بھانجی کو یہ قلمدان دیا گیا ہے۔ تو شیزا بٹ نے اپنے ہاتھوں سے 40 ارب روپے گل کیے ہیں، کیونکہ وہ جو ہواؤں پہ کمند ڈالنے کے لیے چائنا سے سسٹم لے کے آئی تھی وہ بیٹھ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نہ فائر وال ہوئی ہے اور نہ کسی کی پابندی لگ سکی ہے، لیکن قوم کا 40 ارب روپیہ جو کہ ہمارے خون پسینے کی کمائی، جو کہ ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس سے گل کر دیا گیا۔ اب جب بھی شیزا بٹ سے بات کی جائے تو ہنس کے دکھا دیتی ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ بھی آپ کو کس نے کہا تھا اس میں ہاتھ ڈالو؟ 40 ارب حکومت کے گئے اور 400 ارب سے زیادہ لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن یہ حکمران جن کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے۔ بھائی مجھے یہ بتائیں پاکستانیوں کو مہنگائی کم ہوئی ہے؟ پٹرول کی قیمت پوری دنیا میں کم ہو رہی ہے، لیکن 2 دن قبل پاکستانی حکومت نے پھر پٹرول کی قیمتیں بڑھا دی۔ اسی طرح پاکستان میں یہ جو کوالٹی کنٹرول یہ ہوا کا سسٹم تھا وہ اتنا غلیظ ہو چکا تھا کہ لاہور 1 نمبر پہ، کراچی 2 نمبر پہ، ملتان، یہ ہمارے سارے شہر آلود تھے، اور اس میں راولپنڈی شامل نہیں تھا۔ لیکن 26 نومبر کو اسلام آباد میں گولیوں، آنسو گیس اور دیگر بموں کے ذریعے وہاں کی ہوا کو بھی آلودہ کر دے گا۔ اس وقت پاکستان کے تمام شہروں میں راولپنڈی نمبر 1 ہے، صرف ان کی اس غلطی سے کہ انہوں نے اتنے گولیاں، اتنا وہاں بروج چلایا اور اتنے لوگوں کو بقول لوگوں کے قتل کر دیا، لیکن ان کو شرم نہیں آئی کہ ہم کوالٹی کنٹرول کر رہے ہیں پہلے ہی اربوں روپے لگا کے، اور ہم نے خود اس کوالٹی کنٹرول کو بڑھا دیا ہے۔ تو ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے میں نے آج اسٹوڈیو میں جن شخصیات کو دعوت دی ہے ان میں محترمہ زیبا ناز جو کہ ہماری پرماننٹ ممبر ہیں، وہ ہر ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، اور وہ ڈیلی 2 4 6 ٹی وی چینلوں پہ جا کر پاکستان تحریک انصاف کی جو ترجمانی کرتی ہیں۔ میں آپ کو محترمہ زیبا ناز صاحب اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ یاسمین ظفر صاحب ہیں جو کہ فیشن کی دنیا کی ڈیزائنر ہیں، اور ڈریس ڈیزائنر کے ساتھ وہ ہر طرح کی ڈیزائننگ کرتی ہیں، گھروں کو بھی سجاتی ہیں اور دیگر معاملات میں بھی دخل دیتی ہیں۔ ان کا نام ہے یاسمین ظفر۔ تو یاسمین ظفر صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں وارم ویلکم کرتا ہوں۔ تو ہماری تیسری مہمان جو ہے ان کا نام ہے وفا تبسم۔
چہرے پہ ان کے ہنسی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے, تبسم تو ہونا تو چاہیے. تو یہ شاعرہ بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, مصنف بھی ہیں اور ٹیچنگ بھی کرتی ہیں, اور انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے ہماری دعوت پر یہ تشریف لائی ہیں. میں آپ کو فاطمہ خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. تو میں شروع کرتا ہوں ڈریس ڈیزائنر سے کہ ان کی ڈیزائننگ میں بھی کوئی یہ فائر وال کا جو چکر ہوا ہے جس کی وجہ سے سارے آرڈر رک گئے ہیں, نہ کو آ رہا ہے نہ جا رہا ہے نہ یعنی ایون کہ جو گاڑی کی بکنگ تھی وہ بھی رک گئی ہے, ٹرینوں کی, بسوں کی, کوئی سارے آن لائن سسٹم تھا. تو آپ کے آن لائن سسٹم کوئی کاروبار میں فرق پڑا؟ بہت افیکٹ ہوا ہے. اس جو پاکستان کے حالات ہیں اس کی وجہ سے بہت افیکٹ ہوا ہے. سب سے بڑا میجر مسئلہ جو انٹرنیٹ کا جا رہا ہے, اور آج سے نہیں جا رہا, کافی دنوں سے جا رہا ہے. ایک تو انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سے لاسز ہو رہے ہیں کیونکہ آج کل ہر کام ہی انٹرنیٹ پہ زیادہ تر ہوتا ہے. پھر اللہ معاف کرے جو 26 نومبر کا اسلام آباد میں واقعہ ہوا اس سے ہمارے بزنس پہ بہت افیکٹ ہوا ہے. اچھا, کیوں ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ باہر کے انویسٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان وہ نہیں ابھی آنا نہیں چاہ رہے, تو اس سے ہمیں لاسز ہوا ہے کہ جو لگا رہے ہیں کاروبار میں پیسہ یا کسی چیز میں, تو کہہ رہے ہیں پاکستان میں تو ہر چیز بڑھ رہی ہے, مہنگائی کم, کمال کا اچھے انویسٹر, مہنگائی ہی بڑھ رہی ہے نا. تو پاکستان میں اگر ایسے خون کی ہولیاں ہم کھیلیں گے تو فورنر آتے ہوئے ڈرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم نے گولی نہیں چلائی. نہیں, اب جو کچھ ہوا وہ تو دنیا کے سامنے ہے, میں کسی کو کچھ نہیں کرتا, لیکن سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے, سب نے دیکھا ہے. جس طرح اللہ معاف کرے خون کی ہولیاں کھیلی گئی ہیں, لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوئی تھی, تو اب میں کیا کہہ سکتی ہوں. اس کی وجہ سے ہمیں اس میں فائر وال کا چکر آ گیا اس گولی ہولی کھیلنے میں. بہت فرق آتا ہے, بہت فرق آتا ہے. آپ کا جو اکانومی ہے وہ ساری ڈاؤن ہو جاتی ہے, آپ کے ملک کے حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج بوسٹ کر رہی ہے, کمال کر رہی ہے. کیا مہنگائی بوسٹ کر رہی ہے, مہنگائی اوپر جا رہی ہے اور تو کچھ نہیں اوپر جا رہا. نہیں, آپ نے دیکھا نہیں اسٹاک ایکسچینج, یہ جوا اتنا آگے بڑھ گیا جس نہیں, اس اسٹاک ایکسچینج سے ہم کیا کریں جب آپ کی ہمارے بزنس پہ افیکٹ آ رہا ہے. نہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ٹھیک ہے, نہ حالات کا, کوئی سیفٹی نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ ہم کسی کو بلائیں, اس کو ہوٹل ٹھہرائیں یا کریں تو اس کے کیا حالات ہوں. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا, یہ کتنا بڑا افیکٹ ہے ملک کا. واٹ سولوشن فار دس پر؟ سولوشن کیا ہے کہ سولوشن میں تو آئی تھنک کہ جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جو اچھی گورنمنٹ ہے اس کے ہاتھوں میں گورنمنٹ دے دینی چاہیے. ایک ہی جگہ سب کو وہ سٹک ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے. جو بھی لیڈر آئے, جو بھی لیڈر ہمارے لیے سارے کے جو بھی لیڈر ہے, لیکن اس طرح کے جو حالات ہیں کہ آپ خون کی ہولیاں کھیلیں گے, لوگوں کو ماریں گے, جن کے بیٹے گئے, جن کے شوہر گئے, وہ سارے گئے, تو اس کی تکلیف کا ان لوگوں کو اندازہ ہے. جس طرح سڑکوں پہ ان کی لاشیں گھسیٹی گئیں, استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ کہیں ایسا نہ ہو. اور یہاں کوئی چیز اس کا کیا افیکٹ ہوگا مجھے بتائیں. جن شعبے سے آپ کا تعلق ہے نا جی, وہ ہے بڑا پولائٹ شاعری, لوگوں کو ایک اچھی انوائرمنٹ دینا. بالکل. آپ مصنف بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, شاعرہ بھی ہیں. تو آپ یہ بتائیں یہ جو نیٹ کا سسٹم جو جا رہا ہے اور بالکل یہ کلوز کر کے رکھ دیا گیا ہے, اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کسی ملک میں اگر عدم تحفظ کی فضا ہوگی تو یہ بنیادی بات ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے پہ اثر انداز ہوگی. اچھا, اور اگر میں بالخصوص اپنی فیلڈ کا, اپنے میدان کا شاعری, نثر یا درس و تدریس کا کے حوالے سے ذکر کروں تو جو ہمارے موضوعات تھے شاعری کے بھی اور نثر نگاری کے بھی, وہ اس لحاظ سے بدلتے جا رہے ہیں کہ انسان کا ایک شاعر جو ہیں یا ادیب. نہیں, اس میں کوئی نیٹ کا عمل دخل ہے آپ کی شاعری میں؟ بالکل ہے, اس لیے کہ اب بہت ساری چیزیں اس وقت تو زندگی کے تمام تر شعبے جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا, اور بہت کچھ جو ہے وہ آپ نے اس سے آپ کا لکھنا پڑھنا, آپ کا جو ہے وہ رابطے رہنا لوگوں سے, وہ سارا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جہاں پہ جس طرح کی اس وقت سچویشن چل رہی ہے نیٹ کی اور باقی چیزوں کی, تو وہ بار بار اس میں ڈسکنیکشن اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے, تو آپ کے نہ رابطے بحال رہتے ہیں اور نہ آپ اپنے روٹین لائف کے. نہیں, آپ کوئی شاعرانہ انداز پہ اس پہ کوئی نظم, کوئی بات کر سکتی ہیں جو آپ کی تازہ کوئی سنا دے, کوئی اس سے پتہ چلے کہ آپ بالکل ماشاءاللہ نظر ہے آپ کی.
اصل میں نے سیاست پہ تو خیر کبھی جو ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں لکھا. جس میں بھی سنا دیں, ہم نے کون سی یہاں امتحان دینا. چلے ٹھیک ہے, میں آپ کو ویسے اپنی غزل کے چند اشعار سناتی ہوں, اور دیکھا جائے تو وہ ماحول سے ریلیٹڈ. ماحول کی ہم بات ہی ماحول کی کرتے ہیں, تو یہ یاسمین صاحب ہر وقت ماحول بنا دیتی ہیں. جی. ایک تم ہی نہیں ادھر تنہا, ایک تم ہی نہیں ادھر تنہا, ساری محفل ہے کس قدر تنہا, اور رشتہ نارسا کا بوجھ لیے چلنا پڑتا ہے عمر بھر تنہا. اور شعر ہے کہ چند اشعار جو یاد آ رہے ہیں. زندگی کے سفر میں جو بھی ہو چلنا پڑتا ہے عمر بھر تنہا, ہے یہاں ایک ہجوم زخم دل, ہے یہاں ایک ہجوم زخم دل, کیا ہی کر لے گا چار اگر تنہا. ہم نے دیکھا وفا کے مرکز پر, ہم نے دیکھا وفا کے مرکز پر, کل سرے شام ایک شجر تنہا. اور ایک دن آئے گا کہ رسم وفا, ایک دن آئے گا کہ رسم وفا تم مناؤ گے بیٹھ کر تنہا. صاحب آپ یہ بتائیں, یہ جو سوشل میڈیا کا دور تھا اس سے بوم کی طرف جا رہی تھی پوری دنیا, پاکستان میں بھی شامل تھا, اور اربوں ڈالر ہمارے نوجوان بچے یہاں بیٹھ کر کما رہے تھے, ان کو ضد پڑی. اور دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف جس کی آپ نمائندگی یہاں کر رہی ہیں, اس کو کچلنے کے لیے, اس کو دبانے کے لیے انہوں نے یہ سارا سسٹم کیا. تو مجھے یہ بتائیں اس سے آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان صاحب, میں صرف آپ مجھے بتا دے کہ ایک بند شخص کی خاطر پورے پاکستان کو بند کر دیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ کون کون سی چیز میں آپ کو گنواؤں, کہ ہوٹل بند کر دیے, ہاسٹل بند کر دیے, موٹر وے بند کر دیا, میٹرو بند کر دیا, گیسٹ ہاؤس بند کر دیے, ریلوے بند کر دی, شادیاں بند کر دی, مارکیٹیں بند کر دی, شادی ہال بند کر دیے, نیٹ بند کر دیا, واٹس ایپ بند کیا, ایکس بند کر دیا, وی پی این بند کر دیا, پلانٹ جو پانی کے پلانٹ رستے میں لگے ہوتے تھے وہ تک بند کر دیے. آپ نے پورا پاکستان بند کر دیا عمران خان کے لیے, عمران خان کے لیے. اچھا, کہ وہ اندر بیٹھا ہوا جیل میں, یہ اتنا ان کو وہ خوف اور ہراساں ہوئے ہیں کہ اس قدر یہ بکلا چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ابھی 80 بندے نکلے تھے, 80 بندے یہ نکلے, اور اسی 80 بندوں کی وجہ سے ان کا 70 پولیس والے ہلاک ہو گئے. 80 بندے نکلے اور 70 بندے ان کے پولیس والے ہلاک ہو گئے. مجھے بتا دے, جھوٹ بولنے کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے. اتنا سارا کچھ پورا پاکستان بند کر دیا انہوں نے. اس میں حکومت کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہے, آپ کہتے ہیں حکومت کر رہی ہے, ہم کیا فیصلہ؟ احسان صاحب, یہ حکومت جو ہے یہ بکلا چکی ہے. اس حکومت کا اب سروائیو نہیں ہے, یہ دھکے شاہی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ دھکے سے کتنی دیر پاکستان کو چلا سکیں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, اس سوشل میڈیا جی یہ فائر والا ہے, اس سے کو آپ کو نقصان ہوا ہے؟ ملک تو غربت کی اس حد پہ آ چکا ہے جو ناقابل برداشت ہے. وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے کیونکہ ٹی وی چینل انہوں نے خرید لیے, میڈیا انہوں نے پرچیز کر لیا, سوشل میڈیا انہوں نے بند کر دیا. ہر چیز عوام کو نہ پتہ چلے اس لیے ہر چیز پہ بین لگا دیا کہ عوام کو نہ پتہ لگ سکے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہم ٹی وی پہ جو نیوز چلتی ہے وہ ان کی بنائی ہوئی وہاں دے دیتے ہیں تو وہ پڑھ دیتے ہیں. اب یہ عالم ہو چکا ہے. مہنگائی غریب آدمی کو دیکھیں. میں نے جو کوشچن کیا اس کا جواب دیں. جی پتلی گلی سے نکلنے کی بات نہیں, ہم گزرتے ہی نہیں ہیں پتلی گلی سے, ہم گزار دیتے ہیں. دیکھے رستہ کس طرف جا رہا ہے, جو جانا ہی نہیں چاہتا, جو وہاں گزرنا ہی نہیں چاہتا, تو اس کو کیا دکھائیں گے آپ؟ یہ مہنگائی, یہ جو فائر وار لگایا گیا ہے, انہوں نے خود
बेनिफिट लिया है इसमें। इन्होंने देखे 40 साल शीजा भट्ट का कोई किरदार है इसमें? जी, शीजा भट्ट ने, वो वजीर ममलकत आईटी, आपकी वजीर है, वो इनकी खुद की बनाई हुई है। ख्वाजा आज़म साहब की भांजी है, ये भी बता दूं मैं आपको। उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए, वो हर काम एक्स्ट्रा प्लान करके कर रहे हैं जिसका कोई नफा नुकसान नहीं है। हालांकि पाकिस्तान को नुकसान जरूर है इनके हर लाएअमल बनाने से, लेकिन फायदा नहीं है। आप देखें, कोई गरीब आदमी किसी को ठेला लगा के दिया हो, उसके ठेला वातोड़ जरूर दिया है, उसको बना के नहीं। मरियम की तस्वीरें लगी, ठेले लगे हुए, कमाल करती हैं आप। वो तो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आप कहते छीन रहे हैं। जी, पता नहीं वो किन को रोजगार दे रहे हैं। आपने देखा नहीं कि मरियम की तस्वीर लगाओ, रेडी लगा लो। वो तो अब मरियम की तस्वीर बिकेगी ना, लोगों की रोजगार तो ना रह गया ना। वो तो तस्वीर बेच के तो अपना गुजारा कर रहे हैं। बारबी वाली रेडी पे भी लगी होती है, फ्रूट की रेडी पे भी लगी होती है, आलू चाट की चने पे भी। जी, मरियम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब। ये सारा कुछ पाकिस्तान के लिए बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट है लोगों को रोजगार देना, नौकरियां देना, उनके लिए आसानियां फरमाना, उनके लिए बिजली के बिल कम कर लेना, उनके लिए किचन आइटम सस्ती कर देना। ये हर गरीब आवाम के पास। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो वज़ीर आला पंजाब है, उनको आज 100 दिन हो गए वज़ीर आला बने हुए। जी, वो तो 100 दिन में उन्होंने इतने फीते काटे, इतने फीते काटे, वो 100 से भी बढ़ गए। तो इतना तो उन्होंने काम किया, आपको कोई काम उनका नजर नहीं आता। हमें तो एक 0/0/0 हमें तो कोई चीज नहीं। फोटो सेशन के अलावा हमें तो कुछ नजर नहीं आया। हमें कोई लाएअमल दिखाएं। हाँ, वो आए हैं ना हमारा मैंडेट चोरी करके पीटीआई का, तो आके वो सरबराह बन के बैठ गए हैं। मुझे बता दें किसी जगह आवाम में तो आए ना, जहां से इतनी असलियत से आप वजीर आला पंजाब और आपके चचा वजीर आजम बन के बैठे हुए हैं, वो आए आके आवाम के अंदर बैठे ना, तो फिर आवाम उनको बताए कि किस बात बिक रही है। आवाम में क्यों नहीं आते? जो आपको 26 को सबक दिया है जी, अभी भी आप और सबक पढ़ने के 26 को जो इनको हमने सबक दिया है ना, ये मरते भी इस खौफ से बाहर नहीं निकल सकते जो 26 को हमने इनको सबक दिया है। और आने वाले वक्त में जो सबक मिलेगा वो इनकी सोच से भी बदतर होगा। अलीगढ़ गंडापुर भाग गया जी, आपकी वो मोहतरम बुशरा बेगम भाग गई जी, आप भी भाग गई, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। तो ये क्या डट जाती वहां गोलियां खाते? मुझे एक बात का जवाब दे दे एहसान साहब के गोली के आगे सीना तान देना कोई शराफत नहीं है। ये बुज़दिल लोग थे, जिन वर्करों ने ताना वो इंसान नहीं थे, बुज़दिल लोग इनको छोड़ के आप भागे। फैर मारने थे ना, इन्होंने फैर मारने थे तो सामने आके मारते। इन्होंने जो बुज़दिलाना काम किया ना, आवाम को घेरे में लिया। वो ठाठा मारता हुआ समंदर था इस्लामाबाद में और पूरा पाकिस्तान चौक किया हुआ था। इन्होंने वो जालमाना काम किया जिसको मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तानी तो नहीं सोचते थे कि ये होगा। अरे यास्मीन ज़फर, मुझे ये बताओ, ये मरीम ने 100 दिन गुजार लिया, 100 दिन पूरे हो गए। उन्होंने बहुत अच्छा एक किताबचा छापा है और रात को मेरी निगाह से गुजरता है, मैम को मैंने गुजारा। उन्होंने अपनी सारी कहानियां बताई कि मैंने ये किया ये किया ये किया। तो आपको कुछ नजर आया? नजर तो क्या आना है, देखिए जी, जो भी आए उसका किया कुछ नजर आना चाहिए। जो गरीब लोगों की हालत है वो हम देख रहे हैं। सुसाइड अटेम्प्ट बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है। छीना झपटी चोरियां जो सेफ इलाके में, वहां भी यही कुछ हो रहा है कि भूख है, प्यास है, महंगाई है। प्याज जैसी चीज जो एक रोजमर्रा इस्तेमाल की बहुत अहम चीज है, उसकी प्राइस आप देखिए सेब से भी ज्यादा कर दी इन्होंने। कोई मतलब कुछ चीज कोई लाया अमल तैयार 250 है 300 है, कभी 250, तो कोई यहाँ कोई रेट कंट्रोल ही नहीं है होता है ना। हर रोज जाओ रोज नई प्राइस, दूध की नई प्राइस, आटे की नई प्राइस, दालों की नई प्राइस, फ्रूट की नई प्राइस, को हद होती है। ये मरियम नवाज हर चीज नहीं कर रही, तो ये बुरी बात क्या है इसमें? क्या मतलब? मरियम नवाज शरीफ हर चीज नहीं कर रही, नई कीमतें भी अच्छी बात। नई कीमतें तो आवाम को तो सहूलत मिले ना। जो भी लीडर आता है एटलीस्ट आवाम की सहूलत के लिए एक चीज लाता है। मुझे बताएं, मैं तो अपने कारोबार को रो रही, हमारे कारोबार पहले लोग खरीदते थे हमसे कपड़े बहुत ज्यादा महंगे भी, अब लोग कहते हैं हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं रही, महंगाई बहुत है, हम कहाँ से लें? ठीक है, हम बनाते थे पहले बहुत ज्यादा, बाहर बेचते थे, यहाँ बेचते थे, अब हम भी लिमिटेड करते हैं। दर्जी महंगा जी, धागा महंगा हो गया, बटर महंगे, इवन दैट के टिच बटन तक महंगे हो गए। तो क्या करें लोग, मुझे बताएं।
वो मरियम ने टिच बटनों की जोड़ी मरियम ने नहीं की। मरियम ने टिच बटनों की जोड़ी बनाई, कमाल करते मैं हैं। ये नहीं कह रही, एहसान साहब मेरी बात सुने, हाँ। ओवरऑल महंगाई है हमारे मुल्क में, कोई कंट्रोल नहीं उस पे। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आला है, कोई भी है, एटलीस्ट इन चीजों को तो कंट्रोल करे ना। ब्रेक पे जाने से पहले यास्मीन जफर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 100 दिन की हुकूमत पर बात कर रही थी और रोना ये रो रही थी कि डेली कीमतें बढ़ जाती, कम नहीं होती। तो मैंने ये कह रहा था कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने 100 दिन में बहुत नए काम किए हैं, इसलिए कीमतें भी डेली बढ़ना ये उनका नया काम है। तो इस पर कुछ कह रही थी जी। जी मैं यही कह रही थी कि 100 दिन हो या 200 दिन हो या 30 दिन हो, आपको ये कारकर्दगी नजर आए कि आपके मुल्क में सबसे पहले लीडरों का काम है, मेरी आप बात सुने, जो कि हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम तो बात ही आपकी सुन रहे हैं, किसको हाँ सुना रही जी, है आप? कुल्लुकुम राय कुल्लुकुम मसऊल अन रई आते ही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर शख्स अपने दायरे के अंदर एक हाकम है, उसके मतहतों के बारे में उससे पूछा जाएगा। ये दुनिया यही रह जानी है, हमारा सोशल मीडिया, हमारी वाह वाह बल्ले बल्ले, लेकिन आगे जाके जो जवाब हमने देने हैं, जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी पूछताछ होगी। तो एटलीस्ट ये चीजें तो लोगों को सुकून देता रहा। वफात वसम साहबा, आपने दोनों शख्सियात की गुफ्तगू सुनी जी। और मेरे सवालात भी सुने। अब आपसे ये मैं मुल्तमस हूँ, आप बताएं एक इल्मी रोशनी में ये जो लड़ाइयाँ झगड़े डे टू डे अपने जलसे जुलूस और ये जो दावा होता है, इससे क्या मुल्क की इकानमी को नुकसान होता है या फ़ायदा होता है? और हुकूमत ने जिस तरीके से पीटीआई को रोकने के लिए तरीक़ाकार अपनाया है इस्लामाबाद में जो वाक़या, इसकी रोशनी में लोगों को कुछ बताएं, व्हाट इज़ दिस? देखें, जो आपका सवाल है तो बड़े ही वाज़ेह इसका जवाब ये है कि इन सारे मामलात से, इस तरह की सिचुएशन से तो मुल्क की इकॉनमी भी तबाह होती है और ओवरऑल सारे होती है या हो गई है? हो गई है। अच्छा। मतलब होती आपने है, गुंजाइश एक छोड़ी जनरल है बात है ना। नहीं हमारे तो आप देखिए ना, जैसे यास्मीन साहबा कह रही थी, तो मैं बिल्कुल इनको जो है वो इनकी बात को ही आगे बढ़ाती हूँ कि जब मुल्क की इकॉनमी ही तबाह हो जाएगी, आपको पता है हमारे मुल्क की जो आधी 90% अवाम है, वो सिर्फ दाल रोटी के चक्कर में जो है वो अपना जिंदगी गुजार रही है। और ऐसी सूरत हाल में दाल चने की 500 रुपए किलो है। ये दाल रोटी तो मुहावरतन बात आ जाती है। मुहावरतन जो बात की, अब ये मुहावरा खत्म हो ये गया। मुहावरा भी खत्म हो गया। आप सही कह रहे हैं कि अब वो दाल रोटी वाली बात भी नहीं रही। अब तो वो एक वक्त का जो है पेट भरना है, वही लोगों के लिए इस कदर तकलीफ दे बात है। और ऐसी सूरत हाल में किसी कोई भी अवाम, कोई भी मुल्क जो है वो उसकी वो कहाँ पे स्टैंड करेगा, वो उसकी तख्लीकी सलाहियतें किधर जाएंगी, वो ये ना समझ में आने वाली बात है। तो डेफिनेटली के असर पड़ता है इन सारे हालात का, और बिल्कुल मुल्क की इकॉनमी के लिहाज से भी और हर जिंदगी के हर शोबे पे असर पड़ता है। और जो भी सूरत हाल चल रही है, मैं जी, अगर जी, बात कंप्लीट हो गई है तो मैं बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जितने भी प्रोग्राम जो हो रहे थे निश्तो नमूद हो चुके हैं। ना नेट चल रहा है, ना व्हाट्सएप चल रहा है, ना यूट्यूब चल रही है, और जितने भी पूरा पाकिस्तान का नेटवर्क खत्म हो चुका है। और इसके नेटवर्क खत्म करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि पाकिस्तान की आवाम आपस में डिस्कशन ना कर सके, राब्ते में ना रह सके, और पाकिस्तान के जो बाहर मुमलिकत में जो लोग पाकिस्तानी रहते हैं वो आपस में राब्ता ना कर सके। मैं इस वक्त इस मौका पर नहीं, ये सारा जो एक बार जी, ये सारी बात तरीके इंसाफ के खिलाफ है या अवाम के खिलाफ है? ये पूरे पाकिस्तान के खिलाफ की गई है। वो तरीके इंसाफ तो है ना, मेन एजेंडा। आपका मतलब तरीके इंसाफ के खिलाफ नहीं है। 25 करोड़ आवाम में आधे लोग पीटीआई के होंगे, आधे नून लीग के होंगे। ये मुश्किलात सारे पाकिस्तानियों को है। और बड़ी रेमेडी दे रहे हैं आप नून लीग के, आपका आधे लोग हैं। मेन रीजन आसान साहब, मेन रीजन पीटीआई के लिए बनाया गया ये सारा प्रोपेगेंडा कि पीटीआई के लोग आपस में राब्ता ना कर सके, उनके रोजगार बंद कर दिए गए, जो जरे मुआदला जो था नेट से। लेकिन हुकूमत ऐसी है
इन तमाम बातों से हटने का नाम नहीं ले रही। उनको सिर्फ यही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पैगाम जो है वो घर घर दुनिया तक ना पहुंच सके। लेकिन मैं इनको ये बता देना चाहती हूँ, ये जो मर्जी हरबा इख्तियार करे, जो मर्जी करे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। ये फल रही है, फूल रही है, ना इनकी बंदूकों से, ना सोशल मीडिया वार से, ना सोशल वाल लगाने की वजह से ये बंद होगी। ये इंशाल्लाह ताला बढ़ती रहेगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया से कट चुका है और इसमें मेन किरदार जो है वो इन हुक्मरानों का है। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दबाने के लिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सोशल मीडिया से हटाने के लिए ये 40 अरब रुपए का जो इन्होंने ये लोगों को चूना लगाया है, ये अब दुनिया को पता चल चुका है, वो इनको चूना लगाने नहीं देगी। अब ये मैं इस पे इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये VPN का जो मसला था अब इनसे नहीं संभला तो इन्होंने उलमा कराम को बीच में डाल लिया, गैर कानूनी करार दे दिया, गैर शरई करार दे दिया। ऐसी बातें नहीं बनती, गर्म पानी से घर नहीं जलते। मैं बार बार हुक्मरानों से ये कहती हूँ। राघव नबी साहब वो हैं जिन्होंने फतवा दिया है, जिन्होंने आपके बेटे का निकाह पढ़ा है। आपको तो बड़े अच्छे जानने वाले हैं। जी जी जानने वाले हैं, लेकिन इन्होंने जो एजेंडे बनाए ना, इन्होंने जो प्लान बनाए, ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये चाहते हैं ला कानूनियत लाना, मुल्क को हरफी में डाल के रखना और हर इंसान को इतनी मुसीबतों में डाल देना कि वो हुकूमत की तरफ आ ही न सके। वो अपना घर का रोटी दाल, बच्चों का स्कूल, मेडिसिन, हर चीज अपने में पड़ा रहे, वो देखे ना कि हुकूमत क्या कर रही है। यास्मीन ज़फर ये बताएं, आप कहती हैं हमारा कारोबार बहुत, लेकिन हमने तो देखा है कि वज़ीर आला पंजाब लाखों रुपए के सूट बनवा रही हैं। उन्होंने शादियां बच्चों की उसमें करोड़ों रुपए के उन्होंने सूट बनाए। आपका तो काम वो चमका रही है, आप कहती दमकरा नहीं। ये चंद एक लोग हैं, अगर कोई लीडर हैं या चंद एक लोग हैं जो बनवा रहे हैं, हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी नहीं रही। ये बनवाना चाहिए वैसे जी, इतने महंगे। आई थिंक मैं समझती हूँ कि इतना महंगा वो तो वैसे भी इसराफ है, इसराफ है। हमारे दीन में एक लिमिट तक, लेकिन फैशन डिजाइनर तो उसको बढ़ाते हैं, फैशन डिजाइनर बढ़ाते हैं, बढ़ाएं, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज की। जब आप आउट ऑफ लिमिट से जाते हैं ना, तो बहुत सी चीजें लोगों के लिए बड़ी शॉक्ड होती हैं। बहुत से लोग हमें इतनी बयाना रवि रखनी चाहिए महंगे सूटों में भी कि उसमें हमारे जो हमसे नीचे गरीब, अपने से नीचे भी हम देखें कि उन लोगों की कितनी हसरतें होती हैं, वो किस तरह सुसाइड करते हैं, अपनी बच्चियों को जेज नहीं दे सकते, किराए पे और मांग के लोग कपड़े पहनाते हैं। ये लोगों के हाल हो गए, सोना बना नहीं सकते, आर्टिफिशियल पहनाते हैं। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए। छोड़ दे सारी, क्या होता है इससे? क्या छोड़ दें? ना सोना पहने, ना इसराफ करे, ना कपड़े, सारे अमल करें ना, सिर्फ निचले तबके को तो नहीं है इस चीज के, सारे अमल करें। उसमें सबसे पहले हम खुद नमूना बनेंगे ना, जब हमारी गवर्नमेंट, हमारी अवाम जो रिच लोग हैं, बहुत ज्यादा एलीट क्लास है, VIP क्लास है। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब 600 का सूट पहन रही, ये उस्मा बुखारी जी उनके वज़ीर कमाल करते हैं। किसान साहब 600 का दुपट्टा भी नहीं बनता, हम खुद बनाते हैं। आजकल धागा नहीं आता, आप क्या बात करते हैं? 6 हजार करते हैं। तो आपके वज़ीर आला झूठी है? मैं झूठी नहीं कह रही, लेकिन दिस इज रॉन्ग। मैं इस चीज को मान ही नहीं सकती। मैं आज से नहीं, बड़े सालों से फैशन मैंने दुबई में की है, मैंने कतर में फैशन शो किए हैं, मैंने और जगह किए हैं, मैं हर जगह गई हूँ। ये उस्मा बुखारी जी उनके वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने बताया हमें। ऐसा कुछ नहीं है। 600 का आप मुझे जाकर लंडे से भी चीज नहीं मिलती। आप क्या बात करते हैं? लंडे पे तो सब आप ये बताइए 600 वाला मामला क्या है? ये बिल्कुल देखें, ये तो एक ऐसी बात है गैर यकीनी, जिस पे ना यकीन आए। तो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि कहाँ अब वो बच्चों को दूध पिला रही हैं और उसमें भी करोड़ों रुपए खा गई हैं। जी ऐसे ही है। और एक मामले में नहीं, ये तो बहुत सारे मामला ऐसे कोई मामला अच्छा भी बता दे उनको, सब आप उनकी बुराइयां गिना रहे हैं। देखिए मामला किसी इंसान की, ताकि मुझे कुछ तस्कीन हो गया प्रोग्राम में। कुछ बुराई कोई नहीं कर रहा। अगर गैर जानिबदार होके भी बात की जाए, सही बात है, वो पूछ रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ नहीं, अगर देखिए किसी एक शख्स को डिस्कस किए बगैर भी कोई बात की जाए, तो भी हमने जो कुछ नजर आ रहा है हमने तो वो देखना है। और जिस चीज को हम फेस कर रहे हैं और पूरी आवाम फेस कर रही है, हमने तो उसे देखना है कि
आपकी जो है वो हर तरह से आप फैशन की बात कर रहे हैं, तो फैशन तो कोई 1-2% या चंद परसेंट लोग हैं, बाकी देखिए जिनको जो है वो रोटी नहीं पूरी होती, वो रोटी fashion पूरी का नहीं तो होती, जिनको सोच ही नहीं सकता। छत का तन ढांकने का मसला, लोगों के वही बात है कि बेसिक चीज जो है आपका खाना पीना है, लोगों का वो एक टाइम का नहीं पूरा हो रहा। सही कह इमरान साहब आप ये बताएं, अभी इमरान खान साहब ने कल जी अपने लीडरों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम आलमी अदालत इंसाफ में ये जो 26 नवंबर वाला केस ले जा रहे हैं, जी जब आपको कोई एविडेंस इस्लामाबाद के थानों से में नहीं मिल रही, अस्पतालों से नहीं मिल रही, तो आपने ये इतनी छलांग लगा दी, आप वहाँ पे जा रहे हैं आलमी, तो क्या आपको इंसाफ मिल जाए, या इमरान खान साहब का ये दावा जो है, ये जो उन्होंने बात की है, ये दुरुस्त है? यूएनए पे जाने का जो उन्होंने कहा है, देखें हमें इंसाफ पाकिस्तान में तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, हमारी अदालतें हमें इंसाफ दे रही इंसाफ हैं, तो यहाँ ही लेना दे रही है, लेकिन क्योंकि यूएनए जाने का इसलिए कहा गया, यूएनओ में जो उन्होंने कहा, आलमी अदालतें यूएनए और है जी आलमी अदालतों का जो उन्होंने कहा, वो इसीलिए कहा गया कि भाई ये जो झूठ बोल के हमारे ऊपर कहा जा रहा है कि कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई गोलियां नहीं चली, अगर हैं तो दिखाएं, ये इतना बड़ा दावा है, ये बहुत बड़ा दावा किया इन्होंने, और ये झूठ तो पे आपने मबनी- दिखाई कोई? झूठ पे मबनी है। नहीं, आपने एहसान साहब, हमारी आदमियों की लाशें गिरी, हमारे लोगों कारकुनों की लाशें गिरी, और ये झूठ बोलते वो हैं। चीलें बता रही हैं, आप आप नहीं बता सकते। देखें इन्होंने कौन वो से चीले जो कंटेनर गोबरे- पे, चीले जो गोबरे ने जी, इस्लाम- जी, वहां पे गिद्धे हैं, आज भी वहां पे लोग मुझे ये फोन करके बता रहे थे कि इन्होंने वो लाशें कौन से कंटेनरों में छुपा के रखी हैं, अच्छा। जो वहां पे गिद्धे गोश्त खाने के लिए आती हैं। आप जो सदके का भी हम गोश्त समुद्रों में, ये रावी में फेंकते हैं, तो गिद्धे वहां होती हैं। तो इस्लामाबाद कंटेनरों के पास गिद्धों का क्या काम है, मुझे आज बता दें, कभी जिंदगी में देखा आपने? वो उन्हीं कंटेनरों के ऊपर है, क्योंकि उनको स्मेल आ जाती है। अच्छा। उनकी हिस्स इतनी होती है कि वो तलाश कर लेती हैं अपनी खुराक। अनाज के लिए हम इंसान मारा फिर रहा होता है अनाज तलाश करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगह पे एक वसीले बनाए होते हैं, और इन लोगों के लिए भी उनकी हिस्स इतनी होती है कि उनको पता होता है कि हमें अनाज यहाँ मिलेगा। अब उन्होंने वो घेरा तन किया हुआ है, पूरा आसमान वो काला किया हुआ है, उन्होंने चीखे मार के, और वो गोश्त खाने के लिए गिद्धों ने। और ये सारे कुदरती अमल है, एक अल्लाह का कानून है, एक दुनिया का कानून है। जो अल्लाह का कानून है वो वही जानता है कि उसने किस तरीके से दिखाना है, और हमारे जो प्लान है वो हमारे तक है, उसका प्लान अपना होता है। ठीक, तो ये छुपाई नहीं जा सकती बात। मीडिया को छुपा देना, मीडिया को दिखाना ना, मीडिया पे कोई बात ना करने देना, इससे कोई बात छुपेगी नहीं। जुल्म जो हुआ है वो मंजरे आम पे आएगा, आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन को नहीं, कभी नहीं अच्छा, छुप ये सकता। ट्रंप की जीत जो है, जी, इसमें आपको इमरान खान की राय क्यों नजर आ रही है? देखिए, हमें ट्रंप से कोई गरज नहीं है, उसकी जीत नहीं है। वो एक दोस्त है, दोस्तों के लिए अगर कोई अच्छे अल्फाज एक दूसरे के लिए बयान करते हैं, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जिन लोगों ने इन बातों को शोशा बनाया है, जिन लोगों ने इस बात को तूल दिया है, ये वही जानते हैं कि क्या हम गलत और क्या सही करते हैं। ये सारे निजाम इधर से ही आए हुए हैं, इसमें कोई हमारा अच्छा, ट्रंप का कोई ताल्लुक वज़ीर नहीं है आज़म इसमें। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जी, अपने खिताब में कहा है कि मैंने और जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में इस फितने को खत्म किया है। तो इससे क्या मुराद है कि वो सारा मुद्दा आसिम मुनीर पे डालना चाहते हैं? देखें, वो आसिम मुनीर ने भी कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने आसिम मुनीर पे डाल दिया। आसिम मुनीर, या खुदा न खास्ता अगर ये काम किसी तरफ निपटता है तो वो तो आसिम मुनीर को कह के तो खुद तो निकल जाएंगे ना। तो इसलिए वो आज के दुनिया के किंग बादशाह बने हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। वो समझते हैं कि जो हमने हुकूमत कर ली है आके, इतने इस जालमाना हुक्मरान बने हुए हैं, इससे हमने कल जाना भी तो अच्छा, है ना, इसमें और वो अपनी जगह आसिम मुनीर को फंसा के जाएंगे। मैडम मेरी बात सुन, जी अब जिस तरह ये इतना बड़ा साने है, जी इसमें जरदारी भी खामोश है, जी, नवाज शरीफ भी खामोश है, और ये दोनों उनके सरबराह हैं पीपल पार्टी के और मुस्लिम यूनियन के। बिल्कुल। तो इसमें क्या आप वो नाराज है इनसे
देखिए एहसान साहब, ये जरदारी साहब तब बोलेंगे, बिलावल साहब तब बोलेंगे जब उनको को पैसे नहीं मिलेंगे, जब उनको कहीं से फंड कम मिलेगा तब वो चीखें मारेंगे। उनके जो देखे सदर वो हैं, इनके कोलिशन पार्टनर वो हैं, हर काम में ये बढ़ चढ़ के उनका नून लीग का साथ देते हैं और कहते हैं हम हुक्मरान नहीं है, हम हुकूमत में नहीं है। ये अनोखा मैंने इनका पार्टी में अनोखा लाडले वाले काम देखे हैं कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू कर देते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि अवाम के मसाइलों के ऊपर कभी डिस्कशन नहीं हुई, पीटी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं किया, कभी जरदारी साहब नहीं बोले, कभी उनके हल्का बाब में किसी ने कभी कोई बात नहीं की, और फिर ये कहते हैं क्या नवाज शरीफ को सैमसंग है इस बारे में? देखिए उनको, क्योंकि वो उनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया था, तो वो गम, इसी गम से नहीं निकल रहे कि भाई मेरी बेटी को मैंने आगे कर दिया। बेटी भी ऐसी टिकटॉकर निकली कि उसने मेरा ही पता साफ कर दिया। अब अगर इलेक्शन हो अभी तो नवाज शरीफ जीत जाएंगे या हार जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जीतेंगे इस दफा। कैसे इस दफा? वो तो कहते हैं किधर बबकियां उनकी, वो तो मारते हैं, तो एक वोट नहीं उनको मिला, एक वोट। अगर वोट मिलता तो वो भाग भाग के आपकी पार्टी में इंतशार क्यों है? इतने इस्तीफे, इतना इरताश, लेकिन सुबह खबर आती है वैसे ही है, तो ये कौन फैला रहा है? इंतशार बनाने वाले बनाते हैं पार्टियों में। छोटे एक घर होता है ना, 4 लोग होते हैं, उनमें भी क्लैश हो जाता है। इतनी बड़ी पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की इतनी बड़ी जमात है पीटीआई, उसमें जितने लोग हैं, आधे लोग तो हमारे ज्यादा तो जो हमारे हैं वो तो जेलों में हैं, और जितने बाहर हैं, ये जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा पकाया जाता है ना हमारी पार्टी को लेके, ये सुबह भी अभी देखे, ये हमारे दुश्मन नून लीग और पीपल्स पार्टी ये शुरू हमारे नाश्ते से करते हैं, हमारे नाम लेके करते हैं, और रात का डिनर भी हमारे नाम के बगैर उनको हजम नहीं होता। और उसमें 9 मई शामिल, और उसमें 9 मई और साने अब 24 नवंबर हो गया, 26 नवंबर हो गया। अब ये चीजें हमारे बगैर तो पाकिस्तान चल नहीं सकता, हमारे बगैर लायामल बना नहीं सकते। तो ये इनका चट्टा खट्टा हमारे साथ ही शुरू होता है और हमारे साथ ही खत्म हो जाता है। उनके पास और है ही कुछ नहीं। उनको ये नहीं पता 25 करोड़ आवाम को कितनी महंगाई का सामना है, ये बिजली के बिलों का कितना सामना है, आटा, घी, दाल, चावल के भाव का आपको नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि आलू किलो में मिलते हैं या सेर में मिलते हैं या लीटर में मिलते हैं, उनको यही नहीं पता। ये सोने के चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग हैं, इनको क्या पता दाल चीनी का रेट क्या है, ये किलो में और सेर में है। आपकी लाहौर तंजीम कहीं नजर नहीं आती? एहसान साहब, इम्तियाज साहब भरपूर तरीके से रहनुमाई कर रहे हैं, पीटीआई की भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। ये अभी जो इस्लामाबाद गए हैं, उनकी बेगम भी थी, उनकी फैमिली भी थी, हम सब इकट्ठे थे, और कंटेनरों पे अल्लाह ने बचाया उनको भी, सब हमें सबको बचा दिया कि हम वहां से बच गए। जो कुर्बानियां हुई हैं हम तो उनके लिए फातिहा कर सकते हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हम इस वाकया को कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। यास्मीन जफर साहब, आपको ड्रेस सेंटर है तो आपसे ड्रेस की बात की है। अब हमने ये देखा है कि ये जो डिजाइनिंग है, एक लड़की दुल्हन बनती है ना, जी जी बिल्कुल, वो अगर वो वैसे उसको देखे तो वो बिल्कुल देखने के काबिल नहीं होती, लेकिन ये फैशन उसको ऐसे हीरो बनाता है कि वो चंपा कली नजर आती है। लेकिन साहब जब मुंह सुबह धोते हैं तो वो कहते हैं लड़की कौन है? इसका को आप बताएं, इसका इम्तजाज है क्या? इसका इंतराज ये है कि वो एक मिसाल, अब सोशल बातें करते हैं, सोशल, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। लेकिन मैं पहले भी अर्ज किया है कि इसराफ नहीं करना चाहिए। वो एक जोड़ा जो आपको लाखों करोड़ों के, चलो लाख तक हम मानते हैं, आजकल जो महंगाइयां चल रही हैं। नहीं, मरियम इंडिया से बुढ़ाती है, आपसे तो बुढ़ाती नहीं वो। तो इंडिया से कौन से सस्ते बनते हैं? हम भी इंडिया के साथ हम मुंसलिक हैं। मैं इंडिया के 2 बुटीक पे लंदन में कपड़े स्पाई करती रही हूँ खुद, जब मैं कराची में थी। अलंकार और दामनी बुटीक को मैं खुद बना के देती रही हूँ पाकिस्तान से कपड़े। तो यानी आप भी जुर्म में शामिल हैं? नहीं, जुर्म में शामिल नहीं, हम एक रिजनेबल बनाते हैं। देखिए, फैशन करना औरत का हक है, सजना दीन भी इसकी इजाजत, लेकिन आप अपनी लिमिट तो क्रॉस ना करें ना। आप वेस्ट ऑफ मनी ना करें कि जो जोड़ा 1-2 दफा पहन के आपका बंद हो जाना हमेशा के लिए, उस पर अपना पैसा क्यों स्पेंड कर रहे हैं? पैसे स्पेंड करने की भी तो एक लिमिट होती है। फातिमा साहब, आप ये बताइए, आखिरी मिनट है, कि ये जो फैशन करती है खवातीन,
اور اپنے خاندان کو تنگ کرتی ہیں، بیوٹی پارلر جانا ہے، اچھے کپڑے بنانا ہے، تو یہ انہوں نے تو اسراف قرار دیا ہے. آپ کیا یہ سمجھیے لازمی جزو ہے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ دیکھیں، اگر اسلام کی بات کی جائے تو سب سے کمپیٹنٹ بات اور اتھینٹک بات یہ ہے کہ میانہ روی. اچھا، تو میانہ روی سے نہ تو کوئی میانہ روی میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ اپنے حالات کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کریں لیکن ایک حد میں رہ کے، اور اس چیز میں جس سے آپ کے نہ تو فیملی افیکٹ ہو اور نہ آپ کے، اور ظاہری سی بات ہے اپنے جناب حالات محترمہ کے زیبا ناز صاحبہ، یاسمین ظفر صاحبہ اور وفات بسم صاحبہ، میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے میرے اس پروگرام میں جدت ڈالی، اور اس کا میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے.